Hello students and welcome to the Virtual Learning Network. This is session 3 for Nutrition for the Community, and here we will discuss the macronutrients part 2, proteins and fats. The topics to be covered are proteins, their functions, food sources, digestion, absorption and utilization. And second is fats, their functions, food sources, digestion, absorption and utilization. Now first we will start with proteins. Proteins, like carbohydrates, are organic compounds but are distinct from carbohydrates in certain respects. प्रोटीन्स भी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से थोड़े डिफरेंट हैं. Beside carbon, hydrogen and oxygen, proteins also contain another element called nitrogen. So proteins में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होता ही है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में होता है, लेकिन साथ में नाइट्रोजन एलिमेंट भी होता है. The basic building block of proteins are nitrogen containing units called amino acids. So जो प्रोटीन्स का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो अमीनो एसिड्स है जिसमें नाइट्रोजन होता है. Amino acids are joined or linked together in chains by linkages called peptide linkages. So amino acids एक साथ जुड़े होते हैं चेन्स में, और linkages जो होते हैं वो peptide linkages होते हैं, जिसकी वजह से amino acids आपस में join होते हैं. Several hundreds or even thousands of amino acids are strung together in specific strands and coils to form proteins. Hundreds और thousands of amino acids join होते हैं तब जाके proteins form होते हैं. Here is a simple structure of amino acids, how they are joined. Like there are different amino acids joined together by peptide linkages and forming proteins. Now the food sources for proteins. Now many of the food contains proteins, and there is a vast list which includes milk products like curd, khoya, paneer, flesh foods like meat, fish, poultry, eggs, nuts and oil seeds like groundnut, almond, cashew nut, walnut, and pulses which contain Bengal gram, lentils, green gram, rajma, soya bean. Among pulses, soya bean is particularly rich in protein. पल्सेस में अगर हम देखें तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं. नेक्स्ट आर दी फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स के बेसिकली 4 फंक्शंस होते हैं, जिसमें मेन फंक्शन जो है वो है बॉडी बिल्डिंग. देन प्रोटीन्स एक्ट एज रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस, प्रोटीन्स एज कैरियर्स एंड एनर्जी गिविंग फंक्शन. नाउ फर्स्ट इज बॉडी बिल्डिंग. प्रोटीन्स सप्लाई अमीनो एसिड for building new body tissues and for the replacement of worn out tissues. So proteins जो है अमीनो एसिड सप्लाई करते हैं बॉडी टिश्यूज को ताकि worn out टिश्यूज को हटा सके. बेसिकली ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं प्रोटीन्स. Thus they help in the growth and maintenance of the body. Wear and tear जो होता है टिश्यूज का और सेल्स का वो प्रोटीन्स की वजह से होता है. For the constant growth of human beings from birth till adulthood, a regular supply of dietary protein is required. This does not mean that proteins are not needed when growth ceases. Even during adulthood, worn out body tissues need continuous replacement. Thus, proteins are required throughout life for the growth and maintenance of the body. So, प्रोटीन्स जो है अमीनो एसिड सप्लाई करते हैं बॉडी को ताकि सेल्स और टिश्यूज की वेयर एंड टियर पॉसिबल हो सके. सो ग्रोथ में प्रोटीन्स का बहुत बड़ा हाथ होता है. बर्थ से लेके एडल्टहुड तक प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए. देन एडल्टहुड में भी बॉडी के टिश्यूज को जो खराब हो जाते हैं, डेड स्किन को हटाने के लिए और नए टिश्यूज को ग्रो करने के लिए कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट जरूरी होती है टिश्यूज की, और जो प्रोटीन्स की वजह से होती है. इसलिए प्रोटीन्स आपकी थ्रू आउट लाइफ इंपॉर्टेंट होते हैं. Then proteins as regulatory and protective substances. Proteins are also part of some chemical substances essential for the regulation of vital body processes. So कुछ chemical substances जैसे कि जूसेस होते हैं बॉडी के अंदर जो सिक्रीट होते हैं उनका भी पार्ट होते हैं प्रोटीन्स, ताकि बॉडी में जितने भी बॉडी प्रोसेसेस है वो ठीक से काम कर सकें.
ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर. जितने भी एंजाइम्स होते हैं बॉडी में वो सारे प्रोटीन्स होते हैं. लाइक एंजाइम्स, हार्मोन्स आर ऑल्सो केमिकल सब्सटेंसेज वाइटल फॉर द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एज वेल एज सम अदर बॉडी प्रोसेसेस. सम ऑफ द हार्मोन्स आर प्रोटीन्स. कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि इंसुलिन, ये प्रोटीन्स होते हैं. एंड एंटीबॉडीज विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इलनेस आर ऑल्सो प्रोटीन्स. देन प्रोटीन्स एज कैरियर्स. Some of the proteins act as carriers and help to transport certain substances from one place to another. One prominent example of a protein carrier is hemoglobin, the red colored protein containing substance present in the body, in the blood. So कुछ प्रोटीन्स जो है वो कैरियर्स की तरह भी एक्ट करते हैं, एक सब्सटेंस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने का काम करते हैं. जैसे कि हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन एक रेड कलर प्रोटीन कंटेनिंग सब्सटेंस होता है. हीमोग्लोबिन के अंदर प्रोटीन्स होते हैं जो कि बॉडी का फ्लो मेंटेन करने में हेल्प करता है. हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू वेरियस बॉडी टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू द लंग्स. देन एनर्जी गिविंग फंक्शन. Proteins can also be broken down in the body to provide energy. Each gram of protein yields about 4 kilocalories. This, however, is not the major function of proteins and only takes place when the diet does not supply enough energy-giving nutrients such as carbohydrates and fats. So, energy-giving function भी होता है प्रोटीन का, लेकिन ये major function नहीं है. प्रोटीन भी जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पढ़ा था कि 1 ग्राम ऑफ जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का वो 4 किलो कैलोरीज की एनर्जी रिलीज करता है. वैसे ही प्रोटीन्स भी 1 ग्राम कंटेन्स 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी. लेकिन ऐसा तभी होता है जब कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स की सप्लाई बॉडी के लिए एडिक्वेट ना हो, तो प्रोटीन्स एनर्जी गिविंग फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, वरना नहीं. नेक्स्ट इज द डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. Dietary proteins chiefly consist of proteins and small and large chains of amino acid. जो dietary proteins होते हैं उसमें large और small chain होती है amino acids की. And digestion of protein involves the breakdown of these amino acid chains to their constituent amino acids. Proteins की digestion जब हम करते हैं, जब body में protein की digestion होती है तो वो एक तरह से amino acids में दोबारा से break down हो जाते हैं. Then partly broken down proteins from the stomach are released into the small intestine where further digestion takes place in 2 steps. So जो proteins जब stomach में partly break down होते हैं उसके बाद small intestine में पहुंचते हैं और वहाँ पे फिर 2 steps में digestion होती है. First, breakdown of partly digested proteins to smaller amino acid chains. So जो partly digested proteins होते हैं वो और छोटी छोटी amino acid chains में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. एंड ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड चेन्स टू अमीनो एसिड. फिर वो जो अमीनो एसिड चेन्स होती है वो और छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाती हैं. नेक्स्ट इज द फैट्स. फैट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए, फैट्स भी सेम कंटेंट के बने होते हैं. हाउएवर They differ from carbohydrates in structure and properties. लेकिन उनकी properties और structure जो है वो carbohydrates से अलग होता है. The term fat includes fats and oils which are greasy in feel and insoluble in water. So जो fats होते हैं वो उसमें वो सारे oils आते हैं जो greasy होते हैं feel में और water insoluble component होता है. The major constituent of all fats and oils are the fatty acid and glycerol. So glycerol और fatty acid मिलके fats बनाते हैं. They are made up of a molecule of glycerol and 3 fatty acids molecules. Now, the fatty acids are composed of a chain of carbon atoms with other elements like hydrogen and oxygen. So जो fatty acids होती है वो एक तरह से कार्बन एटम्स की चेन होती है जिसके साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी अटैच्ड होते हैं. Some of the common fatty acids are palmitic, stearic, oleic and linoleic acids. So जो common fatty acids हैं उसके नाम ऐसे हैं palmitic, stearic, oleic and linoleic acids. Certain fatty acids have
as many hydrogen atoms as the carbon chain can hold. So कुछ फैटी एसिड्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, इतने सारे कि जितने कार्बन चेन होल्ड कर सकती हैं. दे आर नोन एज दी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. एंड ऑन द अदर हैंड, unsaturated fatty acids have the capacity to accommodate more hydrogen atoms, that is, some hydrogen atom are missing from the carbon chain. और unsaturated fatty acids वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन एटम्स थोड़े कम होते हैं, यानी कि उनके अंदर और भी ज़्यादा कैपेसिटी होती है हाइड्रोजन एटम्स को बाइंड करने की. Now the food sources for fats. Food sources of fats and oils include all common fats and oils like ghee, vanaspati, mustard oil, groundnut oil, soya oil and coconut oil. They are almost 100% fat. The presence of fat is also evident in other foodstuffs like milk and milk products, curd, paneer, khoya, nuts and oil seeds, almond, groundnut, coconut, mustard seeds, eggs and flesh foods. These are known as fat-rich foods. Now the functions of fats. Basically, fats act as the source of energy. Then they have satiety value, insulation and padding, source of essential fatty acids, carrier of fat-soluble vitamins. Now first is source of energy. फैट एक बेसिकली कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है. ईच ग्राम ऑफ फैट कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी. सो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा फैट्स में एनर्जी होती है. दिस इज मोर देन डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय अ ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स. Usually, only a small amount of fat is used to meet the energy needs of the body. Most of the excess fat is stored in the body in specific tissues called adipose tissues. ज़्यादातर जो body fat होता है वो एक specific tissues में stored होता है जिन्हें हम adipose tissues कहते हैं. Adipose tissue is present under the skin and is the abdominal region among others. Adipose tissues ज़्यादातर skin के अंदर present होते हैं और abdominal regions में होते हैं. Then satiety value. Now what happens when we consume fat-rich diets? Do you feel hungry sooner or later? In fact, as you would have noticed, you feel full and do not feel hungry for a long time. जब हम fats बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमारी भूख मर जाती है. हमें काफ़ी टाइम तक हंग्री फीलिंग नहीं आती है. एंड दिस इज़ बिकॉज फैट रिमेन्स लॉन्गर इन दी स्टमक एंड टेक्स मोर टाइम टू डाइजेस्ट. क्योंकि फैट स्टमक में काफ़ी टाइम तक रहते हैं और उन्हें डाइजेशन में भी बहुत टाइम लगता है. इस वजह से जो हमारी हंगर है वो मिट जाती है. एंड हेंस लाइक फाइबर फैट्स ऑल्सो गिव सटाइटी वैल्यू. देन इंसुलेशन एंड पैडिंग. नाउ फैट जो है हमारा वो एडिपोज टिश्यूज की फॉर्म में स्टोर होता है. लेयर्स ऑफ स्टोर्ड फैट अंडर द स्किन एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड कीप द बॉडी वार्म. जो अंडर स्किन फैट प्रेजेंट होता है वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है और हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, उसे वार्म रखता है. अ लेयर ऑफ फैट इज ऑल्सो प्रेजेंट अराउंड द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक द किडनी एंड हार्ट. ऐसे ही कुछ फैट की लेयर्स किडनी और हार्ट के अराउंड भी प्रेजेंट होती है एंड दिस सर्व्स एज अ पैडिंग एंड प्रोटेक्ट्स देम अगेंस्ट इंजरीज. देन सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स. Fats serve as sources of essential fatty acids which have important functions in our body. So fats जो है fatty acids का भी सोर्स की तरह काम करते हैं और fatty acids कुछ vital functions perform करते हैं हमारी body के लिए. Then carrier of fat soluble vitamins. Now some of the vitamins are soluble in fats and are termed as fat soluble vitamins. कुछ vitamins हमारी body के लिए बहुत important होते हैं और जो फैट्स बॉडी में सोल्यूबल हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं. कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट्स की वजह से सोल्यूबल हो जाते हैं और उन्हें हम कहते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन. फैट सर्व एज कैरियर्स ऑफ दीज फैट सोल्यूबल विटामिन इन द बॉडी एंड ऑल्सो एड इन देयर अब्जॉर्प्शन. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ फैट्स. नाउ द डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फैट्स. In the process of digestion, fats are broken down to their constituent components, that is glycerol and fatty acids. अब digestion process में fats जो है वो
कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जो कि होते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स. द टू एंजाइम्स विच एड इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स आर gastric lipase present in gastric juice and pancreatic lipase poured into the small intestine from the pancreas. So, जो दो एंजाइम्स होते हैं जो फैट्स की डाइजेशन में यूज होते हैं, वो होते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, और पेनक्रियाटिक लाइपेज जो पेनक्रियाज सिक्रीट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में. एंड फॉर एंजाइम एक्शन फैट्स नीड टू बी डिस्पर्स्ड और मिक्सड इन वाटर. और एंजाइम एक्शन के लिए पहले फैट्स को डिस्पर्स करना जरूरी है और उन्हें वाटर सोल्यूबल बनाना जरूरी होता है. सो दिस इज डन बाय द डाइजेशन प्रोसेस. नाउ a secretion from the liver called the bile helps in fat digestion by breaking fat into small droplets. और जो bile juice होता है जो liver secrete करता है वो फैट्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है, उन्हें ब्रेक डाउन करता है. एंड दीज फैट ड्रॉपलेट्स आर देन डिस्पर्स्ड इन द लिक्विड डाइजेस्टिव जूस एंड आर इजीली एक्टेड अपॉन बाय एंजाइम्स. और ये जो ड्रॉपलेट्स होती हैं फिर इन पे एंजाइम्स अपना एक्शन लेते हैं. सिंस बाइल इज नॉट प्रेजेंट इन द स्टमक द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट. क्योंकि जो बाइल है वो स्टमक में प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए जो गैस्ट्रिक लाइपेज का एक्शन होता है वो इतना सिग्निफिकेंट और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं हो पाता है. एंड दिस इज द रीजन व्हाई फैट्स आर चीफली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर पेनक्रियाटिक लाइपेज ब्रेक्स देम इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स एडेड बाय द एक्शन ऑफ बाइल. और इसलिए पेनक्रियाटिक लाइपेज और बाइल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फैट की डाइजेशन के लिए, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. And the end products of fat digestion, that is glycerol and fatty acids present in the intestine, move into the intestinal cells. The fatty acids cannot enter intestinal cells as such. Bile salts play an important role in fat absorption by dispersing the fatty acids into small tiny water soluble units called miceles, which can easily move into the intestinal cells. जो एंड प्रोडक्ट होता है फैट डाइजेशन का, यानी कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स, वो इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल सेल्स में मूव करते हैं, लेकिन इतना फ्रिक्वेंट नहीं हो पाता है. बाइल सॉल्ट हेल्प करते हैं उनको डिस्पर्स करने के लिए. एक टाइनी वाटर सोल्यूबल यूनिट्स फॉर्म करते हैं जिन्हें मिसलीज कहते हैं, जो इजीली इंटेस्टाइनल सेल्स की तरफ मूव कर सकती हैं. फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं इंटेस्टाइनल सेल से ब्लड सर्कुलेशन में, और जहां पे वो ब्लड स्ट्रीम में मूव करते हैं और उनकी यूटिलाइजेशन हो पाती है. So blood then carries them either to the adipose tissues where they are stored as concentrated sources of energy or to cells where they are broken down to provide energy. फिर blood उनको कैरी करता है या तो एडिपोज टिश्यूज में लेके जाता है जहां पे वो कंसंट्रेटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरह स्टोर हो जाते हैं, या फिर उन सेल्स में जहां पे वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यूज किए जाते हैं. Now here are some questions for you. First is, how can we improve the protein quality of cereals? And second, how are saturated fatty acids different from unsaturated fatty acids? That's all for this session. Thank you and have a nice day.